Good morning everyone. Today I am back again here with a new lecture for class 3. Subject English Reader Beta. Chapter number 4. And this is lecture number 1 of your reader book, and the name of the book is Essence. So beta, first of all we will cover this lesson chapter 4. Means though it is a poem, but we will consider it as chapter number 4, or we can say lesson number 4. Okay, and for lesson number 4, this is lecture number 1 of your book Essence, as I already showed you book, and I hope you all are having the same book with you. And today's topic we will take is the land of story books. The land of story books, explanation and word meanings of the same lesson. Means topic is the name of the lesson is the land of story books, and we will I will explain this lesson as well as we will do its word meaning. Before we begin this lesson, we will focus on its vocabulary, that is word meanings. Okay, so first of all what we will do, we will cover the word meanings of the same lesson. So let's begin. This is your poem, The Land of Storybooks. Though this poem has no lesson number, so we will take it as chapter number 4. Okay, so this will be take as chapter number 4 beta. Okay, so first of all we will cover its new words. Crawl, C-R-A-W-L, crawl. T-R-A-C-K, track. S-P-Y, spy. S-O-L-I-T-U-D-S, solitudes. B-R-I-N-K, brink. It's brink. P-R-I-N-T, print. S-C-O-U-T, scout. And last, P-R-O-W-L-D, crawled. Okay, it's a verb, crawled. Okay, so these word meanings first of all we'll do in notebook, and along with this word we will write their meanings also side by side. Okay, let's start. So these things first of all we have to mention. You have your English book, you can do the work in that. Okay, but right now I don't have, that is why I am using this Hindi notebook. So you will do in English notebook. Okay beta, accordingly. Date 1/6/2020, you will mention this date, means 1st of June. Poem The Land of Storybooks, you will write like this. Day Monday. Okay, so these are word meanings. Start here, word, and you will write here meanings. Word meanings. First is crawl, and हमेशा याद रखना है कि जब भी आप वर्ड मीनिंग का फर्स्ट लेटर लिखो तो वो हमेशा स्मॉल ही होना चाहिए, until unless it is a proper noun. जब तक वो प्रॉपर नाउन ना हो तब तक हमेशा उसका फर्स्ट लेटर वर्ड मीनिंग का स्मॉल ही आएगा. ठीक है बेटा, तो ये आपको लिखना है फर्स्ट लेटर जो है मतलब वर्ड मीनिंग्स का स्मॉल ही लिखना. अगर वो प्रॉपर नाउन है, किसी भी पर्सन का स्पेसिफिक नाउन नेम है, तो आपका उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आ सकता है. लाइक इफ आई से शिवानी, तो शिवानी का कैपिटल आएगा. लेकिन अगर मैं कहती हूँ क्रॉल, फर्स्ट वर्ड मीनिंग है क्रॉल, तो क्रॉल का सी स्मॉल आएगा. ओके, क्रॉल, क्रॉल मीन्स रेंगना. रेंगना. Second word meaning is track. T-R-A-C-K, track. ट्रैक मीन्स रास्ता, या फिर वो ट्रैक होती है जहाँ पे एथलीट जो होते हैं वो रन करते हैं ना, एक ऐसे बना होता है राउंड राउंड, या फिर वो ट्रैक भी बना होता है जहाँ पे जो दौड़ने वाले लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं जो उस पर रन करते हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रैक. ठीक है,
और ट्रैक को हम बेटा इसका सिनोनिम हो सकता है पाथ। ओके, मार्ग भी कह सकते हैं इसको, मार्ग, रास्ता। थर्ड इज स्पाई। स्पाई मीन्स जासूस। स्पाई मीन्स जासूस। नेक्स्ट इज सॉलिट्यूड्स। Solitudes means अकेलापन, या फिर यू कैन से एकांत। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर इज ब्रिंक। ब्रिंक इज बेटा तट, या यू कैन से किनारा। ओके, जिसे हम बैंक भी बोलते हैं। अगर इसका हमें सिनोनिम लेना है तो बैंक, रिवर बैंक जैसे बोलते हैं, तो दैट इज ब्रिंक। नेक्स्ट इज स्काउट। स्काउट मीन्स गुप्तचर। गुप्तचर, और यू कैन से पहरेदार, और द सेम वर्ड वी कैन यूज जासूस ऑल्सो। ओके, गुप्तचर, पहरेदार, जासूस, मतलब जो वो करता है, देखभाल करने वाला, यू कैन से। ओके, एंड द लास्ट इज प्रॉल्ड। अगर यहाँ पे प्रॉल होता ओनली, प्रॉल और इसमें ईडी नहीं होता तो वो प्रेजेंट फॉर्म में होता, लेकिन यहाँ पे ईडी लगाया हुआ है, ईडी है, तो मीन्स ये हम पास्ट पार्टिसिपल लेंगे इसका। प्रॉल्ड इज तलाशी की, जो तलाश करना है, फिर यू कैन तलाशी की, बिकॉज कर चुके हैं, प्रॉल्ड। ओके, तलाशी की, तलाश करना इज प्रॉल्ड इज तलाशी की। वैसे प्रॉल्ड के बहुत सारे मीनिंग अलग अलग फॉर्म में होंगे, लेकिन हम इसको लेंगे यहाँ पे तलाशी की, मतलब वहां पे उसकी जासूसी की, या फिर वहां पे चुपके से, यू कैन से जैसे कोई भी शिकार करने के लिए बैठा हुआ है कि वो शिकार करेगा, ठीक है, तो चुपचाप बैठा हुआ है और किसी के आने का वेट कर रहा है, उसकी हिलने डुलने की भी आवाजें नहीं हो रही है वहां पे। ओके, सो दीज आर वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज देम। क्रॉल, CRAWL, crawl means रेंगना। ट्रैक, TRACK, ट्रैक इज रास्ता या मार्ग। SPY, स्पाई इज जासूस। सॉलिट्यूड्स, अकेलापन, एकांत। सॉलिट्यूड्स, SOLI, सॉली, TUDES, ट्यूड्स, सॉलिट्यूड्स, एकांत, अकेलापन। ब्रिंक, तट या किनारा। स्काउट, गुप्तचर, पहरेदार। प्रॉल्ड, तलाशी की। ओके बेटा, सो दीज वर्ड मीनिंग्स यू हैव टू लर्न बिकॉज दीज वर्ड्स आर न्यू फॉर यू। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके लिए न्यू हैं। यू कैन लीव वन वर्ड, क्रॉल तो आपको पता है रेंगना होता है, और वैसे तो ये सारे वर्ड्स ही आपके लिए न्यू हैं, तो ये आपको ध्यान से इनको वर्ड मीनिंग से पढ़ना है पहले। ओके, नाउ लेट्स मूव to our lesson. So these new words we had done. Now first of all we will read this lesson or the poem. This poem was written by Robert Louis Stevenson. Okay, the writer of this poem is Robert Louis Stevenson. Okay, so वो इनके जिन्होंने पोएम लिखी थी उनका नाम जो है, पोइट का, राइटर का नाम है, वो है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ओके, रॉबर्ट लुइस
Stevenson. Okay, so he is the poet or the writer of this poem. Now let's start. ये बेटा ये पोएम जो है वो एक बच्चे के मतलब एक चाइल्ड है जिसके ऊपर ये बेस्ड है ये पोएम. वो क्या करता है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो बैठ जाते हैं शाम के टाइम में जहाँ लैम्प वगैरह जल रही है, मतलब सोफे पे, और बातें करते रहते हैं. उस टाइम बच्चा क्या करता है, तो उसकी एक्टिविटी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि वो अपने न्यू वर्ड को एक्सप्लोर करता है, डिस्कवर करता है, एक न्यू वर्ड को, नई दुनिया को बनाता है जहाँ पे वो घूमता है अपना, मतलब उसने अपना एक अलग ही, मतलब अपनी इमेजिनेशन की बेस पे उसने अपनी अलग ही दुनिया बसाई हुई है. जैसे कभी कभी हम खेलते हैं गुड्डे गुड़िया से, तो हम उस दुनिया में पहुंच जाते हैं कि हमारे पास गुड़िया है, उसको हम सजाते हैं, उसके लिए खाना बनाते हैं. ऐसे बॉयज भी ऐसे ही करते हैं, उनके भी अपने अलग अलग मतलब क्रिएटिव वर्क होते हैं, वो न्यू न्यू चीजें एक्सप्लोर करते रहते हैं. तो इसमें जो चाइल्ड है उसने भी कुछ ना कुछ एक्सप्लोर किया है, इसने कुछ डिस्कवर किया है. तो देखते हैं उसका वर्ड कैसा है. ओके, एट इवनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल you should know that the poem has always stanzas. पोएम के हमेशा स्टैंजा होते हैं और इस पोएम के बेटा 6 स्टैंजाज हैं. ओके, 6 स्टैंजाज हैं इस पोएम की. स्टैंजा होती है ये पैराग्राफ नहीं बोलेंगे हम इसको हम पैराग्राफ नहीं बोलेंगे, इसको हम स्टैंजा बोलेंगे. फर्स्ट स्टैंजा है ये. कौन सा स्टैंजा है ये? फर्स्ट. उसके बाद सेकंड है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. लास्ट 6th है. ठीक है, तो इसको हम स्टैंजा बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको? स्टैंजा. ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं पहले हम. At evening, when the lamp is lit, around the fire, my parents sit. Lit और sit ये राइमिंग वर्ड है, ध्यान रखना. ठीक है, राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं इनको हम, मिलती जुलती शब्द. At evening, when the lamp is lit, around the fire, my parents sit. They sit at home and talk and sing and do not play at anything. Sing anything. Sing anything. Lit, sit. These are rhyming words. These are also rhyming words. See again. At evening when the lamp is lit, around the fire my parents sit. They sit at home and talk and sing and do not play at anything. इसको आप एक rhyming उसके एक मतलब कि singing form में आप learn करोगे इसको. ओके, तो हम ऐसे पढ़ते हैं इसको. At evening when the lamp is lit, around the fire my parents sit. They sit at home and talk and sing and do not play at anything. Okay, so क्या होता है कि इवनिंग के टाइम में जब लैम्प, घर की जो लैम्प है वो जल जाती है, इसको हम लैम्प बोलते हैं बेटा. ये पहले होती थी, अब नहीं होती है. तो पहले जब अंधेरा होता था तो घर में लैम्प जलाते थे ऐसे. ओके, इस फॉर्म में होती है लैम्प. तो वो घर में मतलब ये हैंगिंग के लिए होती है, इसको टंगाते हैं. ठीक है, पहले होती थी, अब तो घरों में नहीं होती है क्योंकि अब तो लैम्प की नीड ही नहीं होती है. पहले लाइट नहीं होती थी तो इसको हम जलाते थे. सो एट इवनिंग व्हेन द लैम्प इज लिट अराउंड द फायर माय पेरेंट्स सिट. मतलब इवनिंग में मेरे जो पेरेंट्स हैं वो लैम्प को जला के उसके मतलब पास में बैठ जाते हैं. दे सिट एट होम एंड टॉक एंड सिंग. वो मतलब घर में बैठते हैं, बातें करते हैं, गाना गाते हैं, आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं मम्मी पापा. एंड डू नॉट प्ले एट एनीथिंग. और वो कुछ भी नहीं खेलते हैं, मतलब खेलते नहीं है, बस वो बैठते हैं, बातें करते हैं. तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे इन्वॉल्व नहीं किया उसमें. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अलग खेल रहा हूँ. वो अपनी बातें कर रहे हैं, वो बड़े हैं, वो अपनी बड़ों वाली बातें कर रहे हैं, मैं उनकी बातें नहीं सुन रहा. मैं बाहर मतलब अपने घर में ही थोड़ा दूर उनसे खेल रहा हूँ. तो क्या है इसका फर्स्ट स्टैंजा का मतलब कि जो पेरेंट्स हैं वो बैठ जाते हैं. बच्चा बताता है अपने पेरेंट्स के बारे में कि मम्मी पापा लैम्प चला के बैठ जाते हैं. अराउंड द फायर माई पेरेंट्स सिट. वहाँ पे उस आग के पास, वहाँ पे थोड़ी आग भी जली हुई है तो वहाँ बैठ जाते हैं. दे सिट एट होम एंड टॉक एंड सिंग एंड डू नॉट प्ले एट एनीथिंग. वो अपनी एक दूसरे से बातें करते हैं, गाना गाते हैं, घर में रहते हैं. एंड डू नॉट प्ले एट एनीथिंग, और कुछ भी नहीं खेलते हैं. नेक्स्ट. नाउ विद माई लिटिल गन आई क्रॉल. ये सेकेंड स्टैंजा है बेटा. ओके, नाउ with my little gun I crawl all in the dark along the wall. Now के बाद कॉमा है, थोड़ा हमें रुकना है. Now with my little gun I crawl all in the dark along the wall and follow round the forest track. TRACK, forest track, or away behind the sofa back. Crawl, wall, rhyming word. Track, back,
राइमिंग वर्ड, ये दूसरे के राइमिंग वर्ड ये हैं और ये एक दूसरे के राइमिंग वर्ड है। ओके, आपको राइमिंग वर्ड का ध्यान रखना है। नाउ विद माई लिटिल गन आई क्रॉल ऑल इन द डार्क अलोंग द वॉल एंड फॉलो अराउंड द फॉरेस्ट ट्रैक अवे बिहाइंड द सोफा बैग। अब जो मैं हूँ, नाउ मतलब अब, विद माई लिटिल गन अपनी छोटी सी गन के साथ में, देखो ये बेबी है ना, बच्चा है ना, चाइल्ड, उसके हाथ में गन है, मैं छोटी सी गन के साथ में आई क्रॉल, मैं रेंगना, क्रॉल इज रेंगना, बताया था मैंने, ठीक है, मैं क्रॉल करता हूँ, ऑल इन द डार्क अलोंग द वॉल, अंधेरे में, अलोंग द वॉल, दीवार की तरफ मैं रेंगता हुआ जाता हूँ, एंड फॉलो अराउंड द फॉरेस्ट ट्रैक अवे बिहाइंड द सोफा बैग, मतलब सोफा के पीछे जो दीवार है, मैं वहां पे जाके अपना एक अलग ही मैंने अपनी दुनिया बनाई हुई है, वहां पे एक फॉरेस्ट ट्रैक बनाया हुआ है, मतलब कि फॉरेस्ट वाला रास्ता, जहाँ पे जंगल है, जंगल वाला रास्ता बनाया हुआ है मैंने। जंगल वाला रास्ता का मतलब है कि वहां मेरी अलग ही दुनिया बसी हुई है, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, मतलब इनके बारे में मैं क्या पढ़ता हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे ना सोफा के पीछे जो बॉय है वो अपनी अलग दुनिया में गुम हो जाता है, मतलब जब भी वो सोफा के पीछे जाता है तो उसके जो वर्ड है वो हमारे वर्ड से अलग हो जाता है, मतलब कि वो कुछ ना कुछ इमेजिन करता है, वहाँ पे सोचता है कि मैं यहाँ पे सोफा के पीछे हूँ, अब मेरे पास यहाँ पे देखो, मेरे पास गन भी है, यहाँ फॉरेस्ट है, अब मैं यहाँ पे इसको मतलब फॉरेस्ट में देखूंगा, वहाँ पे कुछ आग जल रही होगी, मैं वहाँ पे खेलूंगा, मतलब वो अपनी दुनिया में बिजी रहता है यहाँ पे आने के बाद, ठीक है। कहाँ पे, सोफा के पीछे उसकी अपनी दुनिया बन जाती है। सोफा से आगे रहता है, जब मम्मी पापा के पास रहता है, देखो मम्मी पापा यहाँ बैठे हुए हैं, वो इस सोफा के पीछे जाता है, वहां अपनी दुनिया में मतलब गुम हो जाता है, अपनी दुनिया बसा लेता है वहां पे जाके। आगे देखते हैं, थर्ड स्टैंजा है बेटा ये वाला। देयर इन द नाइट वेयर नन कैन स्पाई, ऑल इन माई हंटर्स कैंप आई लाई एंड प्ले एट बुक्स दैट आई हैव रेड टिल इट इज टाइम टू गो टू बेड। इट्स नॉट बैड, इट्स बेड, ठीक है, BED, बेड। ओके, इट्स नॉट बैड, कुछ बच्चे इसके प्रोनाउंसिएशन की अलग होती है, बैड बोलते हैं, इट्स नॉट बैड, बैड इज गंदा, ये है बेड, बेड मीन्स सोने वाला बेड आपका, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, देयर इन द नाइट वे नन कैन स्पाई, ऑल इन माई हंटर्स कैंप आई लाई एंड प्ले एट बुक्स दैट आई हैव रेड टिल इट इज टाइम टू गो टू बेड। अब क्या होता है, मैं सोफा के पीछे जाता हूँ रात में, देयर इन द नाइट वे नन कैन स्पाई, जहाँ पे मुझे कोई मुझे नहीं देख सकता, कोई मेरी दुनिया में नहीं आ सकता, जहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ अकेला, ठीक है। उसकी अपनी दुनिया है, सोफा के पीछे है, वो सोफा के पीछे उसने इमेजिन करी अपनी दुनिया की मैं इस दुनिया में हूँ, ठीक है। वे नन कैन स्पाई, जहाँ पे मेरी कोई मुझे जासूसी नहीं कर सकता, कोई मुझे नहीं देख सकता, कोई मेरे पीछे नहीं आ सकता रात के टाइम में। ऑल इन माई हंटर्स कैंप आई लाई, मैं अपने एक हंटर्स कैंप में, जहाँ पे शिकारों का जो कैंप होता है ना, जहाँ पे शिकारी मतलब रहते हैं जंगलों में, मैं वहां पे अपने अकेले बैठा हुआ हूँ। एंड प्ले एट बुक्स दैट आई हैव रेड टिल इट इज टाइम टू गो टू बेड, मतलब कि मैं क्या करता हूँ, डेली अपने बेड पे जाने से पहले जो भी बुक्स पढ़ता हूँ, मैं उस दुनिया में गुम हो जाता हूँ। मैं अपने एक बुक पढ़ता हूँ और उस बुक में मैं वो चीजें पढ़ता हूँ जो मुझे दुनिया चाहिए, जैसे उसे अपनी ये दुनिया चाहिए, अपने अकेले वाली दुनिया, जहाँ पे उसको फॉरेस्ट हो, बर्ड्स हो, रिवर्स हो, वो एक हंटर कैंप में रहे, एक कैंप हो उसका अलग, ठीक है, जहाँ पे वो शिकार करने जाए, जहाँ पे वो हर चीज देखे, फॉरेस्ट वाला वो मतलब सीन क्रिएट करे। तो जैसे ही वो बुक्स पढ़ता है बेटा, वो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो हमेशा रात में सोने से पहले बुक पढ़ता है, और बुक में वो चीज पढ़ने के बाद वो उसको ही इमेजिन करता है, उसको ही सोचता है कि मेरी दुनिया में अब ये चीजें हैं, ठीक है। तो यही वही कह रखा है, एंड प्ले एट बुक्स दैट आई हैव रेड, जो मैंने बुक पढ़ी है अब मैं उस बुक के साथ खेलूंगा, मतलब उस बुक में जो चीजें मैंने सुनी है, जो देखी हैं, अब मैं वही चीज दोबारा करूंगा जब तक मैं बेड पे सोने जाऊं, ठीक है। मतलब जो बच्चा अपनी बुक्स पढ़ता है वो उसी वर्ड में चला जाता है, इसका मतलब ये है। फोर्थ स्टैंजा, दीज आर द हिल्स, दीज आर द वुड्स, दीज आर माई स्टारी सॉलिट्यूड्स, एंड देयर द रिवर बाय हुज ब्रिंक द रोरिंग लायंस कम टू ड्रिंक। देखो, वुड्स, सॉलिट्यूड्स, ब्रिंक, ड्रिंक, यहाँ पर भी बन रहे, ऊपर भी था बेटा, रेड बेड, स्पाई
लाई। ये आपको राइमिंग वर्ड भी देखने हैं, मैं इसके क्वेश्चंस भी पुट करूंगी। ओके, तो अब 4th स्टैंडर्ड में क्या है, दीज आर द हिल्स, these are the hills, these are the woods, these are my starry solitudes, and they are the river by whose brink the roaring lions come to drink। मतलब ये हिल्स हैं, यहाँ पे जंगल भी है, हिल्स भी हैं, यहाँ पे पहाड़ियां भी हैं, जंगल भी है। These are my starry solitudes, और ये मेरी जहाँ पे अकेला रहने वाला, और रात मेरी मतलब तारों से भरी हुई रात है, बड़ा मतलब अकेला अकेला है, एकांत जगह है मेरी वो। And there the river by whose brink the roaring lions come to drink, और वहाँ पे एक रिवर है जिसके तट पर हम क्या आता है, एक लायन, रोरिंग लायन मतलब दौड़ने वाला जो लायन होता है, शेर होता है, वो आता है और पानी पी के जाता है। ठीक है, ब्रिंक मतलब क्या होता है, तट या किनारा बताया था मैंने। तो वहाँ पे क्या होता है, जब जहाँ पे वो रह रहा है, जहाँ पे उसने अपने वर्ड को इमेजिन किया हुआ है कि मेरी दुनिया ऐसी है सोफा के पीछे। ठीक है, तो उसने वहाँ पे इमेजिन करा है कि वहाँ पे हिल्स हैं, वहाँ पे जंगल भी है। वुड्स का मतलब यहाँ पे लकड़ी नहीं है, यहाँ पे वुड्स का मतलब है जंगल। वहाँ हिल्स भी हैं, जंगल भी हैं, और मेरी वहाँ पे जो रात है वो तारों से भरी हुई है, स्टारी सॉलिट्यूड्स, और वो एकांत जगह है पूरी। ठीक है, बिल्कुल अकेला है, वहाँ पे कोई भी नहीं है मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आ रहा है, मैं बिल्कुल अकेले में हूँ। एंड देयर द रिवर बाय हुज ब्रिंक, और वहाँ पे जो एक रिवर है जिसकी तट पर एक लायन आता है और वो पानी पी के चला जाता है। ठीक है, I see the others far away as if it twilight camp they lay, and I, like an Indian scout, around their party prowled about। मतलब मैं सबको मतलब दूर से देखता हूँ, चीजों को मैंने दूर से देखता हूँ। as if in twilight camp they lay, मतलब जहाँ पे मैं जिस कैंप में बैठा हुआ हूँ, जिस कैंप में मैं हूँ, मतलब हंटर वाले कैंप में मैं बैठा हुआ हूँ, वहाँ पे आग जल रही है मेरे, तो मैंने वो चीजों को मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कि वहाँ पे एक मतलब एक दूसरा कैंप भी है, वहाँ पे एक आग भी जल रही है। ठीक है, और मैं ये सब चीजें अपने कैंप में बैठकर ही देख रहा हूँ। ठीक है, तो यही बोलना चाहता है वो दोबारा। तो वो यही कहना चाहता है कि मैं भी अपने कैंप में बैठा हुआ हूँ, दूर ही बैठा हुआ हूँ, और मैं दूर से सब चीजों को मतलब जहाँ पे वो बच्चा बैठा हुआ है वहां से वो हर चीज को देख रहा है। वो अपनी प्लेस को छोड़ के नहीं जा रहा कहीं भी, वो जहाँ पे कैंप में बैठा हुआ है वहीं से वो हर चीज को इमेजिन कर रहा है कि मेरी दुनिया ऐसी है, मेरी दुनिया ऐसी है, वहाँ पे ये भी है, वहाँ पे ये भी है, हर चीज को वो अपने कैंप में बैठ के देख रहा है। और वो क्या कहता है कि मैं अपने कैंप में बैठ के मैं हर चीज दूर से दूर चीज को देख रहा हूँ, और वहां पे मैं कैंप भी देख रहा हूँ जहाँ पे आग जली हुई है। एंड आई, और मैं, लाइक एन इंडियन स्काउट, और मैं एक इंडियन स्काउट की तरह हूँ, एक जासूस की तरह हूँ, एक पहरेदार की तरह हूँ। अराउंड देयर पार्टी प्रॉल्ड अबाउट, जो कि मतलब कि वहां पर है क्या कर रहा है, उसकी जासूसी कर रहा है, और किसी को पता नहीं है इस चीज का। चुपचाप से चहलकदमी मतलब चुपचाप से जाके वो हर चीज को इमेजिन कर रहा है, देख रहा है वो हर चीज को, लेकिन उसके बारे में किसी भी चीज को मतलब वहाँ फॉरेस्ट में जो भी चीज है उनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं हर चीज को देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आई लाइक एन इंडियन स्काउट, मैं एक जासूस की तरह हूँ, इंडियन स्काउट की तरह हूँ। अराउंड देयर पार्टी प्रॉल्ड अबाउट, और मैं उसकी हर चीज की क्या कर रहा हूँ, जासूसी कर रहा हूँ, या फिर मैं हर चीज से क्या कर रहा हूँ, पहरेदारी कर। विदाउट एनीवन नोइंग मतलब इसका प्रॉल्ड का मतलब होगा विदाउट एनीवन नोइंग, किसी को बिना बताए, किसी को बिना पता लगे मैं वहां पे हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हर चीज को देख रहा हूँ, मतलब किसी को नहीं पता कि मैं वहां पे हूँ और मैं हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ओके, तो ये 5th स्टैंडर्ड था। 6th क्या है, लास्ट वाला। सो अब वो हर चीज पहरेदारी कर रहे हैं। अब लास्ट में क्या होता है, सो व्हेन माय नर्स कम इन फॉर मी होम आई रिटर्न अक्रॉस द सी एंड गो टू बेड विद बैकवर्ड लुक्स एट माय डियर लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। सो व्हेन माय नर्स कम इन फॉर मी, अब क्या होता है कि मेरी जो नैनी है, जो मेरी टेक केयर करती है, मेरी जो देखभाल करती है, वो आती है और मेरे को वहां से होम आई रिटर्न अक्रॉस द सी, और वहां से मैं अपने घर चला जाता हूँ। वो अपना ये भी इमेजिन कर रहा है, कोई वैसे उसके पास नैनी नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है कि मेरी नैनी आ चुकी है अब मुझे ले जाने के लिए, मतलब कि वो अपने घर जाने वाला है, वो सोने वाला है, इसका मतलब ये। ठीक है, सो व्हेन माय नर्स कम इन फॉर मी, जब मेरी नर्स, मेरी नैनी जो मेरी देखभाल करती हैं, जब वो अंदर आती हैं, होम आई रिटर्न अक्रॉस द सी, तो मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ। एंड गो टू बेड विद बैकवर्ड लुक्स, और मैं अपने बेड पे सोने के लिए चला जाता हूँ, और मैं पीछे देखता हूँ एट माई डियर लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स,
जो मैंने स्टोरी पढ़ी थी उसके बारे में इमेजिन करके, और उनसे प्रॉमिस करके मैं कल दोबारा आऊंगा न्यू इमेजिनेशन के साथ में, ऐसा मैं कह के तो अपने बेड पे जाके सो जाता हूँ। इसका मतलब ये है कि बेटा कि उसने जो बेबी है, जो चाइल्ड है, वो अपना वर्ड उसने बनाया हुआ है। जो भी वो स्टोरी पढ़ता है, जैसे उसने आज डॉल्स की पढ़ी स्टोरी या फिर उसने कोई और स्टोरी पढ़ी, तो उसी वर्ड को वो इमेजिन करता है, उसी वर्ड को वो बार बार उसी दुनिया में, उसी वर्ड में वो चला जाता है, उसी वर्ड को इमेजिन करके। और फिर नेक्स्ट डे जब वो उसके पापा मम्मी सोफे पे बैठ जाते हैं, फिर वो मम्मी पापा बिजी हो जाते हैं काम में और उसके पास कुछ काम नहीं होता, तो वो अपनी अलग दुनिया में चला जाता है, सोफा के पीछे जाता है और वहां पे उसने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है जहाँ पे वो जाके अपनी दुनिया में चला जाता है। जैसे कि अभी वो फॉरेस्ट वाले में गया था, फॉरेस्ट में जाके हंटर कैंप में चला गया। वो वैसे वो जाता नहीं है रियल में, बस वो इमेजिन करता है, वो सोचता है कि मैं अब यहाँ पर हूँ। जैसे कभी मैंने सोचा कि मैं डिज्नीलैंड में हूँ, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स है। मैंने एक बुक पढ़ी है डिज्नीलैंड की, जहाँ पे मैंने देखा उसमें कि बहुत सारी मेरे पास चॉकलेट्स हैं। एक दुनिया में चली गई हूँ जहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स मिल रही हैं, मुझे टॉफीज मिल रही हैं, ठीक है, वहाँ पे मुझे बहुत सारी डॉल मिल रही हैं। तो मैंने एक ऐसी वाली स्टोरी पढ़ी और फिर मैंने क्या करा, जब सब सो गए या फिर जब सब बिजी हो गए तो मैं उस दुनिया में जाके चली गई, ठीक है। तो मैं उस दुनिया में चली गई, तो मैंने वहां पे देखा जब सब चले, मम्मी पापा मेरे पापा बिजी हो गए, तो मैंने क्या करा कि मैं सोफा के पीछे गई और मैंने देखा कि मैं उसी दुनिया में चली गई हूँ जहाँ पे मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, ठीक है, टॉफीज हैं और बहुत सारे मेरे पास में डॉल्स हैं। फिर उनके साथ खेल रही हूँ और फिर क्या होता है, मम्मी पापा क्या कहते हैं, बेटा चलो बेड पे चलो सोने के लिए। तो उस टाइम अपनी दुनिया से वापस आके अपने बेड पे जाके सो जाती हूँ। और फिर मैं उनसे प्रॉमिस करती हूँ कि कल मैं दोबारा इसी स्टोरी लैंड में, जहाँ बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसी, वहां मैं दोबारा जाऊंगी, लेकिन एक नई स्टोरी के साथ में। ओके, सो दिस इज द पोएम। नाउ योर होमवर्क इज do 7 word meanings in your fair English notebook। ओके, जो मैंने वर्ड मीनिंग्स आज करवाए हैं इसके द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स के, वो आपको वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ओके, द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स के जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं बेटा। सो डू 7 वर्ड मीनिंग्स इन योर फेयर इंग्लिश नोटबुक, द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। तो ये आपका होमवर्क है। अब मैं नेक्स्ट डे आती हूँ। I hope you understood this lesson, this poem, and this poem is very very easy। इसमें बस यही बताया गया है कि बेबी जो चाइल्ड है वो अपनी दुनिया में जाके अपनी एक न्यू दुनिया, मतलब अपनी न्यू दुनिया को डिस्कवर करता है, न्यू वर्ल्ड को डिस्कवर करता है, एक्सप्लोर करता है। फिर उस दुनिया में वो खो जाता है। कब खो जाता है? जब उसके साथ में खेलने वाला कोई नहीं होता, जब वो अकेला होता है, जब उसके पेरेंट्स बिजी हो जाते हैं बातें करने में, तो वो अपनी दुनिया में चला जाता है और वो उसको बहुत इंजॉय करता है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।